अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हादिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है कश्मीरी पंडित से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कश्मीरी पंडित अ ब्रीफ हिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हैप्पी फाइट। The history of the Pandits of Kashmir goes back to the period when the Aryan Saraswat Brahmins, who used to live on the banks of the Saraswati River, migrated to the Kashmir Valley. With the passage of time, they assumed the name Bhattas, and now they are popularly known as the Kashmiri Pandits. The Kashmiri Pandits, who formed a significant part of Kashmir, were closely associated with its culture, customs and traditions. The land of Kashmir was home to many. The first struggle for survival faced by the Kashmiri Pandits was during the reign of Abhimanyu. It was during the 14th century that Kashmir came to contact with the Muslim invaders who took advantage of the weak administration of the Laura dynasty and established their rule. It is said that during 1089 to 1101 AD, Muslim generals who were employed by the then king began consolidating their roots as a community in Kashmir. The first direct assault to Kashmiri Pandits during 1252 to 1273 AD took place when they conspired against the king and failed in their attempts to overthrow him. The king took action against them and they faced much torture. During 1301 to 1320 AD, the rulers encouraged the influx of Muslims into the valley to counter the supremacy of the Brahmins. Most of the rulers who came later tried to do away with them. Some of them adopted methods similar to the infamous genocide of the Jews in Germany during Hitler's rule. These rulers tried to exterminate and eradicate all Hindus from Kashmir. Ali Shah, who ruled Kashmir during 1413 to 1430 AD, adopted tyranny as his tool of administration. His reign was carried out with killings, conversions, and forced taxation on the Pandits. He forbade ceremonies and enforced conversions on the Pandits. Fearing conversion, many killed themselves. Many Pandits fled from their homes and found refuge in other places. This oppression of the Pandits was one of the most terrible incidences of mass exodus. Throughout this period, numerous Pandits were banned from attending religious prayers and meetings in temples. However, when Sultan Zainul Abidin took over the rule of Kashmir, he chose the tolerant path. He ensured that the Pandits' glory was resurrected and they were given back all that they had lost. This was the phase of peace for the Pandits who lived in their homeland without any threat. In the following years, the Kashmiri Pandits suffered terribly under the rule of Shamsuddin Iraqi and Musa Raina. The Pandits were stripped of their religious identity and their religious scriptures were burnt. Those who opposed were slaughtered mercilessly. When Akbar, the Mughal, came to power, he ruled with tolerance towards the Kashmiri Brahmins as well. His policies towards the religious practices were lenient, and all throughout his rule, Pandits were respected and given the freedom to perform their religious festivals and live secure lives. The period between 1753 to 1819 was again a period of cruelty and anarchy. Afghan rule of this period victimized the Pandits in the worst form. This was a period of genocide when thousands of Kashmiri Pandits were killed. History provides instances of parents shaving off their daughters' heads and cutting their nose so as to destroy their beauty and save them from disgrace. Sikh rule in Kashmir was a period of relief for the Pandits after years of torture and barbarism. By this time, a majority of the population had already converted to Islam and most had left the state.
those who remained claimed back their lost honor by Sikra. rebuilding their homes and temples in hope of starting afresh. In 1846, during the Dogra rule, the Pandits were again targeted when their political, religious, and cultural freedom were curtailed. The communal disturbances of 1931 pushed many Pandits towards migration. Their houses were looted, shops burnt, women and children abducted, migration के लिए मजबूर and the कर whole दिया। community tortured. In order to establish the dominance of one community in the region of Kashmir, the inhuman acts against the Pandits, which had been prevailing since ancient times, turned brutal and barbaric in what we can call the genocide of Pandits. The Kashmiri Pandits, with a history of over 5,000 years in Kashmir, were made victims once again in one of the ugliest chapters of Indian history. In the year 1990, following threats against all Hindus to leave Kashmir, there was a widespread chaos in the area when the Pandits were targeted and killed. People were shot in the open and the anti-India slogans were raised. Temples and houses were burnt down and there were explosions in various parts. Thousands were reported dead. Those who survived the massacre fled to other parts of the country. The extermination of the Pandits 25 years ago is perhaps the most tragic incident of the recent past and one that needs to be talked about more often. At present, there are hardly any Pandits living in Srinagar or any other part of the valley. Some of them live in refugee camps in Jammu, while a few live in Delhi and Mumbai. The Jewish community has lived in India without any instances of anti-Semitism or hatred. Since then, जी जनाब, तो यानी कि हम जो समझ रहे थे हर दौर में ही मैं तो ये कहूँगी ज़्यादती हुई है, हर दौर में ही जुल्म और सितम बर्बरियत का शिकार हुए हैं कश्मीरी हम समझ रहे थे जब ये फिल्म आई कश्मीर फाइल, तो हम ये सोच रहे थे कि शायद एक दौर था, तभी हुआ उस है कि दौर साथ में जुल्म। कुछ लोगों ने कुछ पंडितों पर एक जुल्म सहे होंगे जिस पर ये फिल्म बनी है। सही। लेकिन अगर देखा जाए तो मामला तो बहुत ही पुराना और बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बड़ा इशू है ये कि अच्छा मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि शुरू से ही वहाँ के पंडितों के साथ इनको क्या बैर, इनको क्या दुश्मनी, इनको क्या एक लेना देना, इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि शुरू से ही मतलब है कि इन पर वहाँ पर जुल्म हो रहा है, शुरू पर इनके साथ अत्याचार हो रहा है, शुरू से ही मतलब इनके घर जलाए जा रहे हैं। कब से 900 समथिंग से लेकर 1101 तक ये वो पहला दौर था। मतलब समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों। और ख़ास तौर पे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसी भी मज़हब के जो गुरु होते हैं या सिखाने वाले होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो लोग तो जंग से, नफ़रत से, लड़ाई झगड़े से तो पाक होते हैं, दूर होते हैं। और अच्छा, हर दौर में सिर्फ और सिर्फ इनका ही जेनोसाइड क्यों हुआ, इन्हीं के साथ ये जुल्म और बर्बरियत क्यों हुई है? बिल्कुल। हम तो हमेशा कश्मीर जब हमारे यहाँ बात होती है कश्मीर की, तो हमेशा यही बात होती है कि मुसलमानों पर बड़ी बर्बरियत हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा फ़र्का हुआ है, बड़ा नफसा हुआ है। और मज़हब को लेकर और चीज़ों को लेकर तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मज़हब की बात कर रहे हो तो मज़हब को लेकर या चीज़ों को लेकर तो इनके साथ भी जेनोसाइड हुआ है, इनके साथ भी जुल्म हुआ है। और सिर्फ हम मुसलमानों को तो ये कहते हैं डोगरा राजा, जो उसके बाद से मुसलमानों के साथ मसले मसाइल हुए हैं, लेकिन इनको तो दिखाया गया है, जो वीडियो से हमें पता चला है कि डोगरा राजा तो बहुत बाद में आए, इनके साथ तो पहले से मसले मसाइल थे, पहले से इनको मतलब वो प्रायोरिटी, वो इज्जत, वो एहतराम, वो वैल्यू नहीं मिल रही थी, और ये हर दौर में ही जुल्म का शिकार हुआ है। और आपने एक चीज़ और नोट की
कि उस वक्त का जो लिटरेचर था, जो उस वक्त की तालीम थी, जो मतलब है कि मज़हब के हवाले से, दीन के हवाले से या इसके हवाले से, तिब के हवाले से नॉलेज थी जो, उस सब को भी जला दिया गया। उन सबको भी जला दिया गया और सबसे ज़्यादा इन लोगों के पास थी। और इस हद तक मजबूर किया गया है, इस हद तक सताया गया है, इस हद तक मैं ये कहूँगी कि इन पर जुल्म किया गया है कि ये आखिर में इनको पुश कर दिया गया। पुश करना यानी कि किसी तरीके से धक्का देकर एक तरीके से निकाल देना, और माइग्रेशन के लिए इनको मजबूर कर दिया गया था कि आखिर में इनके पास कोई चारा नहीं बचा था। एक दौर ऐसा भी आया था कि इन्होंने माइग्रेशन शुरू कर दी थी। और फिर अभी भी बताया इन्होंने, लास्ट में भी वीडियो में बताया कि कुछ दिल्ली, कुछ मुंबई, यहाँ पे जाकर माइग्रेशन कर लिया इन्होंने, वहाँ पे सेटल हो गए, छोड़ दिया कश्मीर। अभी भी जम्मू के आसपास कुछ इलाकों में रिफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं, बताएं सर। यानी खैमों में रह रहे हैं रिफ्यूजीज़ की तरह, कभी यहाँ भटकना कभी वहाँ भटकना, रिफ्यूजीज़ ही वो होते हैं। तो मतलब एक ये वो लोग होते हैं, मज़हब के पैरोकार होते हैं, ये मैं कहता हूँ वो लोग होते हैं जो ज़्यादा रिस्पेक्ट के काबिल होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मज़हब को दे दी होती है। ये तो दुनियादारी में रहते ही नहीं है, फिर इन पर जुल्म, मतलब मिसाल के तौर पर अगर थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर करते हैं कि हमारे जो आलिम हैं, हमारे आलिमों के ऊपर जुल्म शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे स्पेशली हमारे आलिमों के ऊपर जो हमारा दीन फैला रहे हैं, तो हमें कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और जो हम तबलीग कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम कहेंगे यार तबलीग वाले तो तबलीग कर रहे हैं, ना तो वो किसी के सियासत में है, ना किसी के अच्छे में, ना किसी के बुरे में, ठीक है ना, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई फैलाने की कोशिश में है, या अमन व अमान का उनका दर्स होता है। तो हम इतना गुस्से में आएंगे या हमें बुरा लगेगा, या हमारे मज़हब के जो फैलाने में शामिल हैं उनके साथ अगर जुल्म होगा तो हमें बुरा लगेगा। जो अच्छाई की बात फैला रहे हैं, अच्छा दर्स दे रहे हैं, लोगों को बुराई से रोक रहे हैं, लोगों को बेईमानी का मना करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि फिर इनके दिलों में किस तरीके से हमने अपने लिए नफ़रतें पैदा की हैं। अच्छा, हर दौर में हमने तो सिर्फ सुना था कि इस तरफ जो हुआ था, हमें लग रहा था कि इस तरफ जो हुआ वो हुआ, कश्मीर में जो कश्मीर 90 के दौर में 95 जो हुआ वो हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि 90s से पहले भी बहुत सारी मसले मसाइल हैं, जेनोसाइड तब भी हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, इन्होंने कभी जवाबी कार्रवाई नहीं की, यानी कि मर गए हज़ारों की तादाद में, पहले मरे, फिर उसके बाद मरे, फिर उसके बाद मरे, हमेशा जुल्म बर्बरियत का शिकार होकर भी इन्होंने कभी किसी पर जुल्म नहीं ढाया। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इन्होंने कभी किसी पर सितम नहीं किया, किसी पर गोलियां नहीं तानी, किसी को नहीं उड़ा दिया, क्योंकि वो लोग ही नहीं थे ना, वो इस तरह मासूम के। हाँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो 90s का दौर है ना, ये इस खित्ते के लिए बड़ा एक स्पेशल था, इम्पॉर्टेंट था। वो ऐसे था कि इस 90, 91, 92, 93 में बड़े मसले मसाइल हुए दुनिया में, समझ लो, या एशिया में समझ लो। सबसे पहले तो ये जो कश्मीर वाली बात हमें पता चली, इसके अलावा कराची में बहुत इश्यूज चल रहे थे 90s में बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब थे कराची में, बहुत ही मसले मसाइल थे। ये MKM वाला जो मामला था, और बड़े मसले मसाइल थे, उसमें लोगों को घरों से निकाल के, यूँ समझ लो बहुत इश्यूज़ थे। अच्छा, फिर 90s के बाद ही अफ़गानिस्तान वाला जो मसला था, रशिया के जो टुकड़े हुए, ये भी इसी में ही हुए 92 में। अच्छा, रशिया पूरा टूट फूट गया। यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि 90s का दौर था, ये बड़ा उथल पुथल वाला दौर था, 90 से लेके 2000 तक। अच्छा, फिर 98 में क्या हुआ, एटमी धमाके हुए। पहले इंडिया की जानिब से 5-6 एटमी धमाके, खान सर की हमने वीडियो देखी है, शायद खान सर की पूरी वीडियो देखी थी कि फिर पाकिस्तान ने भी हमारी वजह से एटमी धमाके किए। हम लोगों ने जब धमाके किए तो हमने ये बता दिया कि ये तो वो था, ट्रेलर था, नहीं, तूफ़ान आया हुआ है। वीडियो देखी थी हमने खान सर की पूरी, जिसमें खान सर ने बताया था कि हमने फिर पहले धमाके किए, फिर पाकिस्तान ने किए, सैटेलाइट पे वो लोग बैठ के देख रहे थे, तो हमने ये कह दिया कि तूफ़ान आया हुआ है। याद नहीं हुआ, शायद आपने अलग से देख ली होगी, वो आप कहते हैं ना मेरे पास आती है, हो सकता है शायद। खैर, बहरहाल ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दौर बड़ा उथल पुथल वाला एशिया के लिए था, और हम सिर्फ 92, 90 के हवाले से समझ रहे थे कि कश्मीरियों के साथ या पंडितों के साथ ये प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन ये पहले से शिकार हैं और अभी तक। अच्छा, ये एक अच्छी बात है, फिल्म के थ्रू कि दुनिया को पता तो चला कि यार इनके साथ क्या हुआ, किस इनके। अच्छा, सबसे अजीबोगरीब बात ये है कि इस चीज़ को दबाया गया। अच्छा, सबसे अजीबोगरीब बात मैं आपको बताऊँ क्या है, कि एक तो आपको कोई मारे, आपके कोई घर में घुसे, आपके साथ जुल्म सितम करे, ऊपर से आप उसको रिस्पॉन्स भी ना दो, आप मर भी जाओ, आप कुछ ना कहो, उसकी फैमिली तितर बितर हो जाए, दर बदर हो जाए, घर बार ख़त्म हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, उसके बाद आपको लोगों से सुनने को मिले कि आप ही कायर हो, आप ही बुज़दिल हो, आप में तो हिम्मत नहीं थी।
तो मतलब तब तो आपका दिल चिढ़ जाएगा, जिसने अपना बाप खोया, जिसने अपना भाई खोया, उसको ऐसे डायलॉग सुनने को मिले लोगों की तरफ से कि आपने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई, आपने क्यों नहीं जवाब दिया, आपने क्यों नहीं उड़ा दिया, तो आपको और ज़्यादा शदीद गुस्सा आएगा कि एक तो मेरी फैमिली तबाह और बर्बाद हो गई इन चीज़ों में, ऊपर से आपको ये लगता है कि हम ही कायर थे। यानी उनकी जो वो एक मासूमियत थी, उनकी जो एक जवाब नहीं देना, उनका जो एक अच्छाई थी, उसको भी बुराई की तरह प्रेजेंट किया गया, बुराई को और कमज़ोरी जाहिर किया गया, जबकि वो एक पॉजिटिविटी थी। आपने जुमला सुना था वो विवेक अग्निहोत्री के जब इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जब मुझसे कहा गया कि यार हमारी आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं, एक पंडित ने कहा तो मैं बनवाना चाहता हूँ, तो आप तो हट्टे कट्टे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये नहीं बना सकता, या मैं नहीं बनाना चाहूँगा, या मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, इस तरह कुछ कहा था। तो कहा कि आप भी नहीं करोगे हमारी, तो आप भी नहीं सुनोगे, आप तो इस तरह के काम करते यानी हैं। वो कई जगह ट्राई कर चुके थे और कोई भी उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। दूसरी बात, उनको देख कर नहीं लगता, तो ये बात भी उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि आप इतने लंबे छोड़े हो, इतने मतलब सही खाते पीते हो, लग रहे हो, तो आपके साथ जुल्म हुआ है, लगता तो नहीं है कि आपके साथ जुल्म सितम हुआ होगा। तो लोगों ने देखिए जब हुआ था ना, वो तो उनकी जनरेशन है आगे वाली। बिल्कुल। और एक चीज़ ये, और एक और चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी जो मुझे हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगी, कि हम कश्मीर की तो बहुत बात करते हैं, कश्मीरियों से कभी बात नहीं, कश्मीरियों की बात करते हैं लेकिन कश्मीरियों से कभी बात नहीं की हमने। उनके घर जाकर उनसे जो आप बीती है उनकी कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी ये कि फिल्म देखेंगे, किसी सब्सक्राइबर ने हमें लिंक सेंड किया है, कर दिया है बस, तो अब देखिए वो ओपन हो जाता है किस तरीके से, मुझे आपने बताया नहीं था, आज बताया। कन्वर्ट करेंगे ना उसमें, उनका लैपटॉप में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। कन्वर्ट देखते हैं किस क्या लिंक है और डाउनलोड होगी नहीं होगी। नहीं, फुल मूवी लिंक है। नहीं, एक होता है ना कि किस फाइल में है, फिर वो कहाँ फाइल कन्वर्ट करने का, तो हमारे पता नहीं हो कि नहीं हो, देखते हैं। तो खैर दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।